evening, everyone, and a very warm welcome to Mo TV. So, Mrs. Bhamri, namaskar. Namaskar ji, namaskar. Prakash ji, good evening. Good to see Good you evening, back. good It's evening, been a good long evening. time. Oh, yes. So good to see you back. Colonel Puri, Sat Shri Akal. सत श्री अकाल। सोहन जी, good evening. सलाम नहीं हुआ? नहीं, मैंने बिल्कुल करा, सलाम नहीं हुआ आपने आपका। मैंने बिल्कुल करा, आपने मिस कर दिया। मैंने बिल्कुल इमीडिएटली करा था ये आर्मी वाला सलाम किया था। मैं नहीं भूली कुछ भी, सब याद है। वंडरफुल वंडरफुल। So Nilima ji, good evening. Mamta ji, Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Neena ji, good evening. And Mr. Bansal, good evening. Mr. Kakkar, good evening. Good evening, Rashmi ma'am. ji, good evening. Good evening, Rashmi ji. Ritu. Good evening, Mr. Kakkar. Good evening, Yes, ji. you are Indian. Rashmi ji is behind the camera today. So good evening. Good evening. Rekha ji, good evening. Kal Sharma, good evening. Mr. Gupta, good evening. Good evening, ji. Good evening. Good evening. Mr. KP, good evening. Good evening, good evening. And Mrs. Mehta, good evening. And I have Vibha ji here. Suresh ji, good evening. Mrs. Babeja, good evening. And I see Kapil has already joined. So, but he's not on video. So we will just begin in 2 minutes. Rajinder ji, good evening. यही देखता रहेगा बेकार पे, उसको बंद करो ना। And I also have someone who's joined with Lenovo. Arish, I'm closing. Close it now. Rosin Leni. Okay, I think I just need to mute everyone because nobody is realizing kiska on hai, kiska nahi hai. So please do see your mics and just mute yourself. Rita ji, good evening. Nilu, Good evening. Mona auntie, good evening. Ritu, good evening. Good evening, ji. Good evening. And I see a couple who's joined with Lenovo. Tab 10. Good evening to both of you. I don't have your name, so can I just request you to unmute and just talk about yourself? I'll just send you a request. आप अपने आप को unmute कर लीजिए. Just press that yes button. बस yes को आप press कर दीजिए, मैम. You will be able to speak then. Yeah, I've sent it to you again now. Okay, I think आप थोड़ा सा issue face कर रहे हैं, so we'll get back to you. I think you're waiting for someone to come and help you. हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। आ रही है? अच्छा। हाँ जी। हम लोग गुजरात से हैं। ओके। मैं मिसेस बाउसा। मेरा नाम शर्मिष्ठा। मिसेस बाउसा। मिसेस पाउसा, ओके। शर्मिष्ठा नाम है मेरा, शर्मिष्ठा। राइट। ठाकुर भाई बाउसा। ठाकुर भाई बाउसा। ओके। हम लोग बड़ौदा से हैं। चलिए, वंडरफुल टू नो दैट। आई थिंक आपके 2 काम कर रहे हैं शायद। So, Mr. and Mrs. Pausa, welcome on to Mo TV and glad to see you here. Thank you. Good evening. Thank you. Thank you. And I think Neena ji also I saw for the first time. Is she here? I'm attending every day in the morning and evening, but I'm doing the work also, so that's why I put it off. Okay. So now that you're here, Neena ji, can I just request you to, just say a few lines about yourself? I'm from Nagpur. My husband is also there, but
he's hard of hearing, so sometimes he comes to the program and sometimes he doesn't when he can't. And he's retired. So from Nagpur, it's a very good emoha. I had an experience because my husband had a fall and he had a fracture, this hip fracture. So I contacted the emergency and they were very helpful. They sent the ambulance as well as a person who assisted him to reach the hospital. So it's a good concern. That is all I can say. Thank you. Thank you so much, Neena ji. And of course, I know about all this. So I'm glad things are okay now. And but welcome and happy to see you on More TV also. So and now finally, last few days we've not been getting the introductions done. So it's good to know everyone, by name. So welcome. So getting back to the show. Thank you. So today, of course, as you all know, we have a yoga session with Kapilji. So just coming to the topic, a good laugh and a long sleep are the two best cures for everything. So yoga is a gentle and restorative way to wind down your day. It releases our mind and provides a state of peace to our body, which ultimately leads to a better sleep. There are many positive effects of yoga on wellness, including improved mental emotional health and improved sleep. So from children to the elderly, yoga provides numerous health and sleep benefits. So keeping your health in mind, Emoha in association with Art of Living brings to you a peaceful and informative session on how to sleep better. I think this topic is very, very relevant to all of us because whether we are young or at a different age, all of us are going through this where we are very stressed out and we are unable to sleep properly. So for this, we have Mr. Kapil Arya with us. And I know he has been taking a few sessions. He has already taken a few sessions with us. So happy to have you. And just for all elders who have joined in now. So Mr. Kapil Arya has more than 8 years of corporate experience in risk management profile. He has worked with prestigious professional services firms like EY and Grant Thornton International. He is also an Art of Living trainer and has taught more than 3,000 students in the past 8 years while being a trainer. He brings a rich and diverse experience along with lightness and humor. So without any delay, I'm going to now hand over to Mr. Kapil. Mr. Kapil, a very warm welcome to you and happy to have you. Yeah. सब लोग प्रणाम everybody, नमस्कार everybody. सब लोग अपना मुंह दिखाई कर रस्म पूरी कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर सकते हैं. It is always good to see your happy faces rather than videos of Thank you, N.K. Gupta ji. There is a low to. I think that's the fan running, so there's a little bit of disturbance. Okay. Just give me 1 minute. Yeah. So thank you everybody for inviting me for this beautiful workshop, beautiful session on something which is very, very important to all of us. Yeah. So today we are going to talk about something which is very important. Yeah. So for this session on sleep, I want all of you to be awake. मैं चाहता हूँ सब लोग अच्छे से जग जाएं so that you can sleep better. Yeah. सब लोग जगे हुए हैं. अगर जगे हुए हैं तो ऐसा हाथ ऐसा करिए भाई. जगे हुए हैं. अरे वाह. बहुत अच्छे. जैसे हम लोग को पता ही है. So the conversation will be in Hindi and English both. So we have all mastered the art of sleeping with our eyes open. है ना. जैसे स्कूल में थे ना, जब से तब से ये प्रथा चली जा रही है कैसे आंखें खोल के हम सो सकते हैं. बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अवेक सो दैट यू कैन स्लीप बेटर. या सो पतंजलि महर्षि पतंजलि उन्होंने मेंशन करा है 5 मॉड्यूलेशन माइंड की. उसमें से एक है नींद, है ना. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सोते कैसे. या आई एम श्योर आप सब लोग को कुछ बहुत सारे आइडियाज होंगे कि कैसे मैनेज करते हैं.
बट पिछले 8 साल के अपने मेडिटेशन के एक्सपीरियंस से, लोगों से बात करने के एक्सपीरियंस से, तो मुझे कुछ कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है. डेफिनेटली आप भी जो हैं आपके पास वो भी शेयर करिएगा, बट आई विल ऑल्सो शेयर इट फ्रॉम माई एंड. आर यू रेडी? रेडी? अच्छा, यस के लिए आप ऐसे कर सकते हैं. पता नहीं ऐसे जब करते हैं ना तो लोग मुस्कुराते हैं साथ में, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ. हाँ, ऐसा बोलते हैं जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, 3 महीने तक का, 3 महीने से लेकर 3 साल का बच्चा, वो दिन में 400 बार मुस्कुराता है ना. और वही बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है, 13-18 साल का होता है, तो कितनी बार मुस्कुराता है? वो रिसर्च के हिसाब से वो मुस्कुराता है सिर्फ 40 बार, है ना. और 30 का जब हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर पता नहीं चलता. फिर उसके बाद रिसर्च नहीं हुआ है. तो आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मेरा एंथुसियाज्म बना रहेगा और अच्छा लगता है सब लोग को चेहरा देख के ऐसे. तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये स्लीप है क्या, नींद है क्या, है ना. हाँ, आई वुड लाइक टू स्क्रीन शेयर इफ इट इज अलाउड. ठीक है. हाँ, नींद और उसका इम्पैक्ट हेल्थ पे. पहले हम क्या करेंगे, आप चिंता ना करें, हम इस सेशन में आपको मौका देंगे डेफिनेटली आंखें बंद करने का. तो उसका मौका मिलेगा. आप एक इतना जगह रखिएगा कि आप आराम से लेट पाए, है ना. सो वी डू वेरी स्पेशल मेडिटेशन विच इज लाइंग डाउन मेडिटेशन, बट बिफोर दैट वी लर्न अबाउट स्लीप अ लिटिल बिट मोर, है ना. और कैसे हम लोग अपनी नींद को बेटर कर सकते हैं. ऑल्सो अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल है या किस रीजन से आप इस सेशन में आए हैं स्पेशली, मगर 3-4 लोग, अगर 2-3 लोग शेयर करना चाहें तो इट बी गुड. अगर 2-3 लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आप क्यों आए, ताकि मैं अपनी जो इंटरेक्शन को वैसे रख सकता हूँ. हाँ, बिकॉज मेरे को साउंड स्लीप नहीं आता, इसलिए मैं आपका सेशन अटेंड करना चाहती थी देखने के लिए कि हाउ आई शुड गेट द साउंड स्लीप. मुझे भी थोड़ा डिस्टरबेंस होती है स्लीप में 2-3 बार रात को. हाँ, ओके. और नींद हो जाती है. हम क्या विजय जी? I have a prostate problem. Uh-huh. Resulting, I had to get up during the night 3 to 4 times, Uh-huh. and my sleep is disturbed. Absolutely. चलिए फिर बात आती है. मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती है सालों से. मैं बहुत सालों से स्लीपिंग पिल्स ले रही हूँ, लेकिन जब भी मैं एडवांस मेडिटेशन कोर्स करके आती हूँ तो मुझे 1-2-3 महीने आती है नींद, उसके बाद फिर वापस. इसलिए मैं हर 6 मंथ में एक एडवांस कोर्स करती थी. अभी लॉकडाउन के कारण नहीं हो पा रहा है, तो मेरा तो ये कारण है कि मैं अभी आई हूँ. कोई मुझे और गुरु मंत्र मिल जाए तो मुझे नींद आने लगे. हाँ, बिल्कुल. 3 बजे रोज आँख खुलती, 2:30 और 3 बजे, उसके बाद फिर नींद नहीं आती है, फिर सुबह 6 बजे फिर सो जाते हैं. चलिए बात करते हैं आज इसके बारे में. मेरे कपिल जी. हाँ विजय जी. We have come here because Kapil Arya has come, so we thought we will learn something more. नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है. जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में सीखा मैं बस वही शेयर करूंगा. आई थिंक सब लोग म्यूट कर लीजिए. Lenovo टैब आई थिंक 10 ओपन है, अनम्यूट है, तो अपना म्यूट कर लीजिए. रितु जी, इफ यू कुड जस्ट अनम्यूट एवरीबॉडी, म्यूट एवरीबॉडी. या थैंक यू सो मच. सो जैसे हम लोगों को सबको थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है सोने में. आपको याद है, आपने पिछली बार, अच्छा कितने लोगों ने ऐसा अपने दृश्य देखा है जब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं या अपनी स्कूटी पे बैठे हुए हैं, आप एक ऐसे बच्चे को देखते हैं जो ऐसा मोटरसाइकिल पे सोया हुआ है, उसकी माँ की गोदी में ऐसे लटका हुआ. कितने लोगों ने देखा है? वो मोटरसाइकिल पे भी सो जाता है. अच्छा हाँ, मैं भूल गया. देखा है आपने? कितने लोगों ने देखा है ऐसा बच्चा जो मोटरसाइकिल पे अपनी माँ की गोदी पे मोटरसाइकिल पे सो जाता है ना. और आपने देखा है छोटे बच्चों को वो इतना एक्टिविटी करते हैं कि उनको एक स्पेसिफिक टाइम पे नींद आ जाती है ना.
तो अब हम कुछ कुछ टिप्स शेयर करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी नींद को बेटर कर सकते हैं। हाँ, तो अब क्या, अब मैं कुछ पहले जानते हैं कि नींद क्या है। हाँ, हाँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक क्यूट सा बच्चा। What is sleep? Sleep is a naturally recurring mind-body state. It's an altered consciousness जहाँ पे सेंसरी एक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाती है। इनहिबिशन ऑफ नियरली, इसमें क्या सारी वॉलेंट्री मसल्स जो है उनको रिलैक्सेशन मिलता है ना, और परसेप्शन जो सराउंडिंग का होता है वो कम हो जाता है। हाँ, तो ये है हमारी नींद। अब कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे एक्सपीरियंस में काफ़ी अच्छा रहा है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है। हाँ, तो अच्छा, कितने लोगों के पास फ़ोन है? कितने लोगों के पास फ़ोन है? एक बार आप वो फ़ोन, अभी क्या सब लोग फ़ोन पे अलार्म लगाते हैं सोने, कब कब जगने वाले हैं। सबसे पहली टिप, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। सबसे पहली टिप जो है, हम लोग जनरली फोन पे अलार्म लगाते हैं सोने के लिए, कब हम जगने वाले हैं। बट अब मैं आपको एक टिप बता रहा हूँ कि आप जनरली, हम लोग कई बार क्या होता है, लेट हो जाता है ना, तो अपने फोन पे अलार्म लगाइए कि कब सोना है आपको। जैसे मेरे फोन पे हर रोज 10 बजे का अलार्म लगा है, 10 बजे रात का, कि अभी तो सोना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग कब सोएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, आपने, अच्छा कितने लोगों का ये एक्सपीरियंस है, जिस विचार से आप सोते हैं, आखिरी विचार जो होता है नींद से पहले, वही पहला विचार होता है सुबह। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है? या आपने ऐसा भी एक्सपीरियंस करा होगा कि अगर आपका नींद बहुत डिस्टर्ब्ड है, तो आप अगर कोई चीज से परेशान थे सोने से पहले, तो वही सारी चीजें आपको ड्रीम्स में भी दिखती है। एक बार ये देख सकता हूं कितने लोग साथ ऐसा होता है। अच्छा, तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल लूं, आप देखो, ये जैसे हमारा मन है, ठीक है। अगर मैं इस पे कुछ ना कुछ ऐसा लिखता रहूं, अगर मैं इसमें कुछ भी लिखता हूं, अभी आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये इंप्रेशंस है मन में। फिर जब तक ये हमारे इंप्रेशंस, जब तक ये खत्म नहीं होते, जब तक ये ब्लैंक स्लेट नहीं होता, तब तक आपको नींद का थोड़ा अभाव रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है मेडिटेट करना। आज हम एक बहुत सुंदर मेडिटेशन भी करेंगे जो है योग निद्रा। इट्स कॉल्ड योग निद्रा मेडिटेशन। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योगा एंड निद्रा। हाँ, इट इज अ रेस्टफुल अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस विच इज रेस्टफुल, जहाँ पे आप रेस्ट भी करेंगे और अवेयर भी रहेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है सोने से पहले की स्थिति, है ना। जिस स्थिति से आप सोते हैं उसी स्थिति से आप उठेंगे। बहुत जरूरी है ये चीज को देखना। इसलिए बहुत जरूरी है थोड़ा टाइम योगा, अपना एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ना। आपने नोटिस करा होगा कि जब एक्टिविटी करते हैं, जब हम थक जाते हैं, तब अच्छी नींद आती है। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है वही, है ना। इसीलिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब एक्सरसाइज को ऐसा नहीं कि सोने से पहले इमीडिएटली करना, वो सही चीज नहीं रहेगी। एटलीस्ट आप 5 बजे से पहले अपना एक्सरसाइज खत्म कर दो। जितना हमारा बॉडी टायर्ड रहेगा, उतना हम जल्दी सो पाएंगे, है ना। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, वो एक्टिविटी कम होता है। तो और अभी जैसे कोविड के टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो गया अभी टू मूव आउट, सो एटलीस्ट वॉक। आई एम श्योर आपको सबको पता ही होगा वो चीजें। तो बहुत जरूरी है वॉक करना, एक्सरसाइज करना, है ना। और कुछ लोग हम में से क्या अलार्म लगाते हैं, है ना, और सुबह का जगने का अलार्म, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत साइंटिफिक रिसर्च है, उसमें ऐसा बोला गया है कि अगर आपकी नींद अलार्म से खुलती है, तो वो नींद आपकी क्वालिटी कम हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा टाइम पे अलार्म लगाइए कि मतलब जब आपको लगे कि बहुत लेट हो। जैसे अगर आपको 7 बजे 6 बजे उठना है, तो 6:30 बजे का अलार्म लगा लीजिए, है ना। क्योंकि अगर वो 6 बजे से पहले अलार्म बजता है, तो नींद का क्वालिटी बिल्कुल खराब है। जैसे आपने देखा होगा कि
जब हमारा जैसे हम उठते हैं वही हमारी एनर्जी कैरी करते हैं, है ना। तो बहुत ज़रूरी है आप अच्छे से सोइए, और अपने जब आप उठना चाहते हैं उससे थोड़ा सा लेट अलार्म रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब भी स्नूज करते हैं हम अपने अलार्म को, दैट रियली इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ आवर स्लीप, है ना। तीसरा चीज़ है अल्कोहल। अपने अगर हम लोग लेते हैं तो अल्कोहल सोने से पहले अवॉइड कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है ना। और आपको पता है चौथी चीज़ मैं शेयर करूँगा, जब आप सोएं तो आपके जो कमरा है ना बिल्कुल डार्क होना चाहिए। मतलब ऐसा कि अगर आप अपनी उंगली ऐसे हाथ को भी ऐसा रखो ना, आपको अपना हाथ नहीं दिख रहा होना चाहिए। हमारा जो रूम जनरली होता है इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, है ना। सो इट शुड बी लाइक जैसे ही आप अपने बेडरूम में एंटर करो आपका सोने का मन, या इट शुड बी पिच डार्क, है ना, बहुत ज़रूरी है ना। और क्या जैसे कुछ हम लोग क्या कभी आजकल ये थोड़ा ट्रेंड आ गया कि हम अपने बेडरूम में टेलीविजन होता है ना। तो अपने जैसे ये फोन पे आपको पता है एक विजन का होता है, विजन कंफर्ट का एक हमेशा ऑप्शन रहता है। क्यों ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम रात को जब सोते हैं तो वाइट लाइट जैसी आती है ना, तो उसका मतलब क्या होता है, माइंड को, ब्रेन को ये जाता है सिग्नल, अरे अभी तो सुबह है। आप देखोगे, अच्छा कितने लोगों के घर पे ट्यूबलाइट्स हैं, वाइट ट्यूबलाइट्स, है ना। यू नो वाइट ट्यूबलाइट्स रात को बहुत डिस्टर्बिंग रह सकता है। ऐसा बोलते हैं कि, ऐसा रिसर्च बोलता है जैसे अगर आपके घर पे वाइट लाइट्स है ना, तो आपका जो स्लीपिंग प्रोसेस है कम से कम 1-1.5 घंटा डिले हो सकता है। तो मतलब अगर आप 11 बजे जाओगे सोने के लिए, अगर घर पे ज़्यादा वाइट लाइट्स है तो वो 12 बजे नींद आएगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं येलो लाइट होना थोड़ा अच्छा रहता है। क्योंकि ये क्या, आप देखोगे जैसे ही आप ये वाइट लाइट को देखते हो अपनी स्क्रीन पर, ये ब्रेन को सिग्नल जाता है, अरे अभी तो सुबह है। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, एम आई मेकिंग सेंस? नहीं, हाँ ना, कुछ तो बोलो। Isn't it? इसीलिए जितना आप येलो लाइट रखेंगे ना उतना बढ़िया रहेगा। जैसे हमारे घर में आप देख रहे हो येलो लाइट, हम लोगों ने स्पेसिफिकली ये करा हुआ है कि हम लोग 7 बजे के बाद येलो लाइट चलाते हैं। वाइट भी है पर येलो भी है। इससे क्या, ब्रेन को ऐसा मिलता है कि अरे अभी इट्स टाइम टू गो टू स्लीप, इट्स अबाउट रेस्टिंग, है ना। मेरे एक दोस्त है, वो पता है, वो स्पेशली ऐसे बॉडी को तैयार करता है। वो ऐसा बोलता है, नाउ इट्स टाइम टू रेस्ट। रोज अपनी बॉडी को कॉन्शियस एफर्ट करता है कि अभी मेरे को रेस्ट करने का टाइम है। सो मेक योर बॉडी, आपको ये थोड़ा सा एफर्ट लगेगा शुरू में, बट अगर आप ये छोटे छोटे चेंजेस करेंगे ना, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं? हाँ, अच्छा कितने लोग कॉफी पीते हैं, चाय कॉफी पीते हैं शाम के 5 बजे के बाद? हाँ तो ये ऐसा बोलते हैं कैफीन जो है ना वो मुश्किल कर देता है नींद को आना। तो अगर ऐसा बोलते हैं कि वैसे तो दोपहर के 3 बजे के बाद से अगर आपको नींद अच्छी चाहिए ना, आपको कैफीन, चाय, कॉफी अवॉइड करना चाहिए। देखो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें प्रूव्ड है, रिसर्च हुआ है, मैं तभी ये शेयर करूँ। आखिर में कुछ आपके सवाल होंगे वो मैं लूँगा, है ना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अवॉइड हैवी मील्स व्हेन इट्स लेट, है ना। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 7 बजे, 8 बजे, 7:30 बजे तक मैक्सिमम जाएं और खाना खा सकते हैं। कितने लोग 7 बजे से पहले खाना खा लेते हैं? 7 या 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं? अरे वाह, तेज कुमार जी खा लेते हैं। अरे वाह, मंजू जी भी बहुत अच्छे, प्रकाश जी भी। ओह अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ज़रूरी है कि हम सही टाइम पे खाना खाएं, क्योंकि क्या होता है, जैसे हम सही टाइम पे खाना खाते हैं ना, हमारे शरीर को कम से कम 3 घंटे चाहिए वो खाने को डाइजेस्ट करने में। अगर हम जैसे सपोजिंगली जनरली हम अपने दिल्ली वाले लोग क्या करते हैं, 9 बजे खाना खाएंगे, और अगर आप ज़्यादा सजग हो तो आप 10:30 बजे सो जाओगे। तो जैसे हम सोते हैं, जो एनर्जी रेस्ट करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए एनर्जी लगनी चाहिए, वो एनर्जी लग जाती है डाइजेशन करने में।
इसीलिए बोलते हैं कि टाइम पे खाना खाना चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम गलत टाइम पे खाते हैं तो जब वो बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए हमारी बॉडी तब भी काम करती है। इसलिए नींद का सिस्टम आप देखोगे अलग अलग हो जाएगा। और ऐसा बोलते हैं कि जनरली अगर आप अगर एक स्केड्यूल बना लेना, आपको 10 बजे सोना ही है या 10:30 बजे मैक्सिमम या 11 बजे मैक्सिमम सोना ही है, एक पर्टिकुलर टाइम बना लीजिए। जैसे छोटे बच्चों को देखोगे, वो जो छोटे बच्चे खेलने वाले लोग, उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद आ जाती है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व करा ऐसा? एक जैसे ही टाइम बचता है उनका वो नींद आ जाती है। देखिए, जब हम छोटे बच्चे थे हमारे नेचर ने ऑलरेडी सिस्टम क्रिएट करा था, अभी हमने थोड़ा इधर उधर कर दिया क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे हमें। हाँ, आपके लिए हेल्पफुल है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ? हाँ, अगर नहीं तो ऐसे कर सकते हो, आपका मर्जी। आप मुस्कुराते हुए करिएगा बस, ऐसे ना अगर यूजफुल नहीं लग रहा तो। हाँ? और क्या एक और चीज, कितने लोग दोपहर को सोते हैं, दोपहर को आराम करते हैं? पिंकी शर्मा जी है ना, कुछ लोग हम में से करते हैं। इसलिए बोलते हैं नैप वाइजली। ये क्या कि अगर हम लोग 30 मिनट से ज्यादा सो जाते हैं ना, तो हमारी रात की नींद को अफेक्ट होगा ही होगा। हाँ, तो अभी जो टेक्निक आपके साथ हम शेयर करेंगे ना, योग निद्रा, आप वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपनी नींद से, ताकि क्या आपकी नींद, रात की नींद अच्छे से आ पाएगी। मैं आपके साथ वो लिंक भी शेयर कर दूंगा, जिस लिंक को आप रोज प्ले कर सकते हैं सोने से पहले, और दोपहर को भी कर सकते हैं। योग निद्रा करके टेक्निक है, तो आपका रेस्ट भी हो जाएगा और आपको नींद भी ऐसा टोटल नींद नहीं आएगा, पर उतना रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। चाहिए कितने लोग को ऐसा टेक्निक चाहिए, है ना? अरे वाह, कुछ लोग चाहते हैं ऐसा, बहुत अच्छा। और क्या कर सकते हैं, है ना, अपना सोने से पहले लड़ाई ना करें डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, because whatever is the last emotion when you sleep is going to be the first emotion when you wake up. तो ज़्यादा सीरियल ना देखें जो वायलेंट हो। इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, वो सॉफ्ट म्यूजिक चलाते हैं, चैंटिंग सुनते हैं, है ना। और आप जैसे, जब मैं काम करता था अपने ऑफिस में, अभी तो मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ जैसे, तो अभी तो मेडिटेट करता हूँ तो सारे इंप्रेशंस गायब हो जाते हैं। बट जब मैं ऑफिस में काम करता था, अब मैं आखिरी मोमेंट तक ऑफिस का काम करते रहता था सोने से पहले, तो मेरे सपने में मेरा बॉस आता था। कितने लोग का ऐसे एक्सपीरियंस है? आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, जब आप, है ना, जो चीज़ मन में चल रही होती है वो नींद में भी आ जाती है ना। और एक बहुत सिंपल टेक्निक है, वो क्या, टेक ब्रेथ्स, 15 लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर। जैसे आप बेड पे बैठे सोने से पहले 15 लंबी गहरी सांसें अंदर और बाहर। जो लोग आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर चुके हैं, उज्जयी ब्रेथ जानते हैं, उज्जयी ब्रेथ में कर सकते हैं। बहुत पावरफुल टूल है अगर आपको अपना नींद को इम्प्रूव करना है ना। और ऐसा लास्ट टिप है, उसके बाद हम योग निद्रा टेक्निक करते हैं। रात को जितना हो सके आप ड्रिंकिंग, जो लिक्विड जो हम लेते हैं ना, वो कम कर दीजिए, ताकि नींद रात को कटेगी नहीं तो रात को ज्यादा पानी पीते हैं तो दिक्कत हो जाता है। उज्जयी ब्रीदिंग तो गले से करते हैं ना? हाँ रीटा जी, हाँ रीटा जी, थैंक यू। रात को कहते हैं दूध पी के सोना चाहिए, दूध पीने से अच्छी नींद आती है। हाँ, दूध भी पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। हाँ, तो अभी आप टेस्ट ट्राई करना चाहेंगे योग निद्रा टेक्निक? अभी ये देखो क्या सेशन है, आप ऐसा सेशन अटेंड नहीं करा होगा जहाँ पे आप लेटे हुए हैं, है ना, निद्रा का एहसास होगा। तो आप जल्दी से 1-1.5 मिनट ले लीजिए। आप ऐसा बना लीजिए कि आप आराम से पीठ के बल लेट सकें। यू कैन जस्ट मेक अ स्पेस at your place where you can just lie down on your back and keep your eyes closed. अभी नहीं, एक बार सब लोग आराम से अपना जगह बना लीजिए ताकि आप आराम से लेट पाए। ये आपके लिए तकिए के नीचे। अच्छा, हाँ, अगर हो सके तो देखिए, अगर आपके पास योगा मैट है तो योगा मैट पे करिएगा। बेड पे तो हमें नींद आ जाएगा, तो बेड का सबसे पहला इंप्रेशन ही यही है, नींद। तो अगर आप आराम से पीठ के बल लेट जाएं, जूट का या कोई आपकी दरी हो या चटाई हो
या चद्दर हो, उस पे आराम से पीठ के बल लेट सकते हैं, है ना। पिलो नहीं लेना चाहिए। पिलो नहीं, पिलो अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, सागरिका जी रेडी है सब लोग? हाँ, अभी मेरे को आपको देखने की जरूरत नहीं, बस आप अपना आप आराम से अपना कैमरा को ऑन रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको देख पाऊं, बट आप आराम से पीठ के बल लेट जाएं। आसपास कोई आपको लगता है ना कोई डिस्टर्ब करेगा, दूध वाला आएगा या घर पे कोई आने वाला है, तो आप दूसरे घर वालों को बता दो कि भाई संभाल ले अगले 20 मिनट, अगले 20 मिनट आप इंजॉय करने वाले हो। आई कैन अश्योर यू, अगर आप 100% दोगे तो। हाँ, अनीता जी, प्रकाश, अच्छा कितने लोग रेडी हैं? अंगूठा दिखाइए भाई। हाँ, तो सब लोग आराम से लेट जाएं, बहुत अच्छे। अगर कुछ नहीं है तो आप बेड पे तब लेट सकते हैं, है ना। एक बार कैन वी म्यूट एवरीबडी? पीठ के बल बैक। हाँ हाँ, सब लोग अपना म्यूट कर लीजिए, आंखें बंद कर लेते हैं। अभी हम करेंगे योग निद्रा, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की आवाज में। आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखें। अब हम लोग थोड़ी देर लेट के योग निद्रा कर लेते हैं। लेट जाएं। सब लोग लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, जहां पर भी हैं पीठ के बल लेट जाइए। अब दाहिने पांव के ऊपर बाएं पांव रखें और कमर से नीचे का हिस्से को हिलाएं, दाहिनी तरफ और बाएं तरफ। कमर में कोई टेंशन हो तो वो दूर हो जाएगा इससे। अब दूसरे पांव को रिवर्स करें। बाएं पांव के ऊपर दाहिने पांव रखा। अब फिर इसी तरह से कमर के ऊपर के भाग को नहीं हिलाया, नीचे के भाग को सिर्फ हिलाया। अब दोनों घुटने को मोड़कर पांव को जमीन पे रख दिया। दोनों घुटने आकाश के ओर, आसमान के ओर रहें और पांव दोनों जमीन में। अब रीढ़ की हड्डी पूरा जमीन से लगा हुआ क्या देखना। कहीं पीछे नीचे गैप लग रहा हो तो उसको गैप कम करना चाहिए। एकदम रीढ़ की हड्डी को जमीन पे लगा के रखना। टोड़ी को जरा सा अंदर करना। गर्दन के पीछे भी स्ट्रेच हो जाए। रीढ़ की हड्डी को खूब अच्छा विश्राम मिल जाए तो ही विश्राम होता है, इसीलिए जमीन में सोना बहुत ही अच्छा है। अब भी घुटने को दाहिने बाएं दोनों घुटने साथ कर लें। अब दोनों पांव सीधा कर लें। अब पांव फिर फैलाकर सीधा कर लें। दोनों पांव के बीच में थोड़ा फासला रहे, कम से कम 1 फुट, 1 से 2 फुट तक की फासला कर लें। हथेली आसमान की ओर, दोनों हाथ जमीन में आपके बाजू में।
विश्राम करें। प्रसन्न चित्त से मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। अपना वजन को याद कर लें। अपने वजन को जमीन पर पूरी तरह से रख दें। आंखें बंद कर लीजिए। समर्पण कर दें। विश्राम कर दें। शांत है। अब हम अपने मन की यात्रा शरीर के अंदर एक एक अंग से करते जाएंगे। दाहिने पांव में अपना ध्यान ले जाते हैं। दाहिने अंगूठे को थोड़ा सा हिलाएं। और पंजी को आगे पीछे करें। दाहिने पांव के पंजियों को आगे पीछे करें, हिलाएं। पूरा ध्यान दाहिने पांव में। अब हिलाना बंद करते हैं, सिर्फ ध्यान ले जाते हैं हाथ दाहिने पांव में। दाहिने घुटने, आपको सिर्फ अपना ध्यान ले जाना है उस हिस्से में जिस हिस्से की बात हो रही है। आंखें बंद ही रखेंगे। दाहिनी जांघा, दाहिनी पीठ, पीठ के दाहिने भाग, पूरा ध्यान बाएं पांव में। बाएं अंगूठे को हिलाएं। बाएं पंजियों को मोड़ें। बाएं पंजियों को हिलाते हैं।
और धीरे धीरे बाएं घुटने तक अपना ध्यान ले जाते हैं। बाएं झंगा, बाएं पीठ, जननेंद्रिय, पेट, नाभि, छाती, दाहिने हाथ, और दाहिने भुज, बाएं हाथ और बाएं भुज, छाती और गर्दन, चेहरा, पूरा शरीर, पूरा का पूरा शरीर,
Om Shanti Shanti Shanti. धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते फिर एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ें। जैसे नींद से उठते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं, ऐसे अंगड़ाई लो और धीरे धीरे दाहिनी तरफ मोड़कर विश्राम करें। धीरे धीरे दाईं तरफ करवट ले लीजिए, आंखें बंदी रखेंगे।
धीरे से हाथों का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएं, आंखें बंद रखेंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और जाने दें। धीरे धीरे वातावरण और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते होते धीरे धीरे अपनी सुंदर सी दोनों आंखें खोल सकते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आप अपना समय लीजिए। कैसा रहा जिन्होंने अच्छे से करा, जो पीठ के बल लेट के कर सके? वीना जी ने बहुत अच्छे से करा, प्रकाश जी ने, हाँ प्रकाश जी शेयर करिए ना। हरीश जी ने भी बहुत अच्छे से, हाँ प्रकाश जी अनम्यूट कर सकते हैं, कर लीजिए। हाँ मुझे एक चीज पूछी थी। आपने कहा कि सोने के समय पिच डार्क होना चाहिए। हाँ ओल्ड एज में अगर डार्क रखेंगे कमरे को तो गिरने की संभावना है, रात को जब उठते हैं तो चोट वोट लगने की संभावना है। दूसरा, खिड़कियां वगैरह खुली रखेंगे तो उसमें रोशनी तो आएगी कहीं ना कहीं से। हाँ अभी कैसा रहा जब आपने अभी ये करा? मैं इसके बाद मैं लेता हूँ। बहुत अच्छा रहा, अंधेरा है बिल्कुल। नहीं प्रैक्टिस अपने योग निद्रा के बाद मन कैसा है अभी? आप बहुत अच्छा हल्का फील हो रहा हूँ। हल्का फील हो रहा हूँ। हाँ इसके बारे में बात करता हूँ आप जिस चीज के लिए बोल रहे हैं। और सत्येंद्र जी कुछ शेयर करना चाह रहे थे? हाँ नहीं ठीक लग रहा है। आपने देखा होगा। हाँ और कोई शेयर करने लग, मन कैसा है अभी? शांत तो बहुत है। शांत हो गया ना हरीश जी? अरे वाह हरीश जी नमस्कार, आप याद आ गया आप। हाँ कपिल जी कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा। गुड। बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं। अच्छा कितने लोगों को बिल्कुल फ्रेश लग रहा है अभी, जैसे लग रहा है कि नींद से उठे हैं, जो लोगों ने अच्छे से करा? देखो ना, ये बहुत पावरफुल टेक्निक है ना? हमारे ऋषि मुनि पहले ही इतना काम कर चुके थे। रंजना जी आप शेयर करना चाहेंगे? एक दो लोगों को और सुनते हैं। रंजना जी अनम्यूट कर लीजिए। बहुत लाइट, आई फील वेरी लाइट, रिफ्रेश्ड। आई वाज अबाउट टू स्लीप। Yeah, it's a very deep feeling, because if you see, it gave you rest also, but you just woke up so quickly. Otherwise, when we sleep, we don't wake up so easily. No tension was there actually. Mind was free, absolutely free mind. एक्चुअली जो ध्यान था ना, वो ध्यान तो गुरु जी की जो आवाज निकल रही थी उसमें था, तो इसलिए सारे विचार जो थे कोई और आ ही नहीं रहा था। बिल्कुल, इसलिए आप सब लोग जिनको कभी भी नींद का इश्यू आता है, आप दोपहर को ये कर सकते हैं, आपको बहुत रेस्ट मिलेगा। और आप चाहे तो 20-25 मिनट सो जाएं, और रात को अगर आपको बहुत नींद नहीं आती है, ज़्यादा नींद नहीं आती है, आप ये करिए सोने से पहले। मैं आपके संजना जी हैं उनको दे दूंगा, तो आप इस लिंक को यूज़ करके आप कर सकते हैं रोज़, है ना? इससे क्या अच्छी नींद आती है। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप ध्यान सीख सके। अगर आप लोग ध्यान करना जानते हैं तो उसको करिए, ज़रूर करिए, चाहे आप जो भी मेडिटेशन करते हैं पर करिए। और वो तो मैं तो गुरु जी का ही रोज करता हूँ, सुदर्शन शंकर जी का ध्यान रोज करता हूँ। क्या नाम, हम लोगों को आदत होती है कि लेटते ही करवट बदल के ही सोते हैं, सीधा नहीं सोते, तो उसमें क्या किया जाए? हाँ देखो, सोने का क्या करते हैं कि हम लोग पीठ के बल स्टार्ट कर सकते हैं सोना, और उसके बाद जो भी हो हमारे कंट्रोल में नहीं है। पर अगर आप एक चीज देखिएगा, मतलब जैसे मेरे एक दोस्त था, वो सोने लग गया था, और कुछ टाइम बाद वो ऐसा जब भी सोता था वो ऐसे हाथ हो जाता था उसका। अगर ऐसा कुछ होता है, आप नोटिस करेंगे आपके शोल्डर्स में आसपास पेन होना शुरू हो जाएगा।
तो आप थोड़ा सा गर्दन के नीचे बाजू होती है। अच्छा, हाँ, थोड़ा अवेयरनेस के साथ ना आप हर बार जैसे आपको थोड़ा सा नींद से आपको हल्का टूटे, आप उस हाथ को हटा लिया करो, नहीं तो आपको ये पीठ में, बैक में दर्द देना शुरू हो जाएगा। वो आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। जैसे ही आपको थोड़े से अवेयर हो जाओ ना, तो उस हाथ को ढीला छोड़ के अपना रिलैक्स में ले आओ। वो आपको ही करना पड़ेगा। जस्ट हाँ, और कुछ आप शेयर करना चाहिए? इसलिए ध्यान भी करना बहुत जरूरी है, उसको भी सीख सकते हैं। क्योंकि क्या हमारा मन क्या चलता रहता है, जैसे मैंने बनाया ना, हमारा मन ज्यादातर टाइम ऐसे ही रहता है, पर इसको अगर साफ करना है तो उसके लिए कोई तो प्रैक्टिस चाहिए, है ना। अगर ऐसा मन चाहिए तो ध्यान करना पड़ेगा। मेडिटेशन इज अ कंपल्सरी थिंग। आजकल के मैं जैसे आई एम श्योर कुछ लोग, आप लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होंगे, मैं गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम्स लेता हूँ। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ द प्रोग्राम अभी डे बिफोर यस्टरडे। सो पिछली दफा ध्यान कराया था आपने? हाँ, पिछली बार मैंने ध्यान कराया था, ये भी इस बार भी ऐसे करा था। जी जी जी। हाँ, तो मैं वही है ध्यान कर। रात को सोते हुए कभी कहाँ पहुंचे होते हैं, कभी कहाँ पहुंचे होते हैं, क्या पुराना क्या सोच रहे होते हैं, वो क्यों थॉट्स इतने आते हैं। हाँ, ऐसे चल रही है, कोई गाड़ी चलता ही जा रहा है। ये जैसे हम रिटायर भी हो गए, हमें स्कूल के सपने आएंगे, ऐसे लगता है कि हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बड़ा है। अच्छा, कितने लोगों के घर में कितने लोगों के घर में डस्टबिन है? डस्टबिन है घर में? अरे वाह, सबके घर पे है। है ना। आप डस्टबिन के रोज साफ करते हो नहीं करते? है ना। सबके पास दांत है ना। नहीं है तो कोई नहीं, वो आर्टिफिशियल वाले तो है ही। सब लोग अपना, हम लोग साफ तो करते हैं ना रोज उसको। ऐसे ही मन को साफ करना बहुत जरूरी, नहीं तो हमारा मन जो है वो पास्ट में या फ्यूचर में अटक जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है मन की स्लेट को थोड़ा रोज साफ करते रहना। इसलिए जैसे आई थिंक अभी एक दीदी शेयर कर रही थी ना, कि वो हर 3-4 महीने में एडवांस कोर्स करती, नीलू जी शेयर कर रही थी, है ना। नीलू जी 6 महीने में करती है वो। हाँ, तो बहुत जरूरी है आजकल के टाइम पे ये सब करना। नहीं तो आपने देखा होगा कि जो भी मन में ऊपर नीचे चलता ही रहता है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजें मन पकड़ के बैठ जाते हैं। मन का स्वभाव ही है। What duster should we use for that cleaning? You can use the Sudarshan Kriya also. In fact, I want to share a small video of all the people who suffer from insomnia. How Sudarshan Kriya, how meditation can help. Would you like to see it? It's just a 2-minute video. आप एक बार देखिए और देखिए कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है। हम लोग को लगता नहीं है कि मेडिटेशन वर्क करता होगा, बट मन की स्लेट को साफ करने के लिए एक चीज जो है बहुत काम करती है। क्योंकि हम लोग जो सोते हैं, ऑलमोस्ट 30% जिंदगी हम सोते हैं अपनी लाइफ में, और ठीक से नहीं सोए तो कुछ तो हम लोग गलत कर रहे हैं, है ना। तो एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, नींद के ऊपर है ये, और कैसे मेडिटेशन हेल्प करता है। Is spent sleeping. A good night's sleep. 1/3 of our life is spent sleeping. A good night's sleep is essential for health, providing rest and restoration for mind and body. Nearly everyone has spent at least one night lying in bed wishing for sleep. But for many people, it's a nightly struggle. Insomnia is now a common sleep problem affecting millions of people worldwide. The National Institute of Health estimates that roughly 30% of the general population complains of sleep disruption or showing symptoms of insomnia, and about 10 to 15% of adults suffer from chronic insomnia. Such individuals find it difficult to fall asleep or stay asleep, and hence not providing quality time for the body to recuperate. The negative effects can be devastating, like high blood pressure, obesity, depression, poor concentration, fatigue, anxiety, and much more. A study at the University of Pennsylvania has shown that extended periods of sleeplessness can lead to irreversible brain damage.
Sleeping pills can seem like the perfect cure for insomnia, but it doesn't cure insomnia, and you need higher and higher doses every time. Insomnia has one root cause: stress. Research shows that a powerful breathing technique called the Sudarshan Kriya can serve as a catalyst in overcoming stress and insomnia. A person with insomnia experiences increased random and rapid brain waves as well as other altered brainwave activity. This hyperarousal of the brain contributes to the difficult nighttime sleep, a pattern of insomnia. Sudarshan Kriya has proven to bring positive changes in the frequency of these brainwaves without any side effects, and thus gradually curing all symptoms of insomnia and improves the quality of sleep. The decreased electrical activity in the brain during Sudarshan Kriya leads to significant increase in endorphins and reduces stress hormones. With the practice of Sudarshan Kriya, the electrical patterns in our brain slows down and relaxes, leading us to the most desired brain frequency. This helps in achieving the ability to fall asleep naturally, ensuring a healthy life and a holistic well-being. So you can, this is one technique which I know which really works. उसके लिए इतना ऐसा हार्ड योगा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल टेक्निक है. आप बैठे बैठे सोफे पे बैठ के कर सकते हैं. Just takes 30-35 minutes of your time. I'm sure मैं शेयर कर दूंगा संजना जी के साथ जो प्रोग्राम है. आई थिंक हम लोग भी प्रोग्राम सैटरडे से चालू करें. ऑल द पीपल हु वांट टू लर्न द सुदर्शन क्रिया कम ओवर. कपिल सर, आपने एक चीज नहीं बताई. जो रात को मतलब जैसे प्रोस्टेट की जिसकी प्रॉब्लम है और रात को अगर 1 या 2 बजे उठना पड़ता है उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं? प्रोस्टेट का मैं एक बार देख लूँगा. मेरे को ना उसका ज़्यादा आइडिया नहीं, तो मैं डेफिनेटली जब भी अगली बार आता हूँ आपको बताता हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता नहीं मैं उसको डेफिनेटली कुछ बताने नहीं चाहूँगा. ठीक. अच्छा, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए जरा, वो अंधेरे वाला. हाँ, अच्छा, हाँ, आप जैसे बोल रहे थे ना, जैसे हाँ, जैसे आप लोग ध्यान रख सकते हैं जब ऐसा बहुत ब्लीक लाइट हो, है ना, ये बहुत जरूरी है. ज्यादा ऐसा नहीं बिल्कुल पिच अंधेरा हो आपके लिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरे ख्याल से हम लोग को थोड़ा आई का इश्यू हो सकता है, तो आप हल्का सा लाइट रख सकते हैं, पर इतना नहीं रख सकते. हल्की ब्लू लाइट. हल्की ब्लू लाइट, ब्लू के अलावा देख सकते हैं. ब्लू के अलावा चाहे येलो हो जाए लाइट में. अच्छा, ठीक. वो ज्यादा हेल्प करेगा. अच्छा, जैसे खिड़की खोलेंगे तो लाइट तो आएगी बाहर से. हाँ, वो देखो उतना एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं है ना. आप एक बार ट्राई करके देखो मैंने भी अपना ना, आप एक चीज जरूर करना, अलार्म लगाने वाला चीज. अगर कुछ लोग जो जनरली कई बार, कितने लोग सीरियल देखते हैं रात को, ये बताना कितने लोग सच्ची सीरियल देखते हैं. देखो रात को सीरियल देखना बंद कर दो, आपका नींद अच्छा आना शुरू हो जाएगा. आई कैन अश्योर यू. मैं तो अपना अलार्म लगाता हूँ, 9 बजे सोने का सो जाता हूँ. हाँ, बहुत अच्छे. ये थोड़ा हाँ, सुबह उठने का भी अलार्म है 5 बजे. बहुत अच्छे. और आप देखोगे अगर बॉडी एक रिदम में आ जाए तो हमें अलार्म की जरूरत नहीं, ना सोने का ना जगने का. आप लोग तो एक्सपीरियंस कीजिए. Kapil, reading books. Yeah, you can read those books, but it should not be violent novels. It should be, yeah. I don't watch TV. I read books only. Yeah. But at the just before night, it is important that the brain activity is less as much as possible. So you can listen to music that instead. Is the time we get reading books. Acha, you get tiring. Maybe just not before sleep, just maybe 2-3 hours before sleep you can do that. Listen to some songs, old आप किशोर कुमार के गाने सुन सकते हैं, and you'll feel that नींद आता रहेगा.
और अपने फोन को बिल्कुल पास, हाँ, और अपने फोन को बिल्कुल इंटरनेट ऑफ करके सोया करिए, क्योंकि क्या रेडिएशन बहुत करता है वो बहुत जरूरी है। ये 2-3 चीजें अगर कर लेना, बहुत सारी चीजें मैनेज हो सकती है। व्हाट्सएप, हाँ, मतलब आप आधे घंटे पहले तो आपको अपना सोने से पहले आधे घंटा 1 घंटे पहले आपको अपना फोन को बंद करके रखना चाहिए, जैसे मैं शेयर कर रहा था। वन थिंग मैं आपको कहना चाहूंगी, मेरे को ऐसा कोई वो नहीं है कि मेरे को नींद में जो मैंने इमीडिएटली देखा था या दिन में हुआ था या दिन में कुछ भी घटा था वो डिस्टर्ब करता है। मेरे को बिल्कुल इररिलेवेंट, जो कि किसी से कोई संबंध नहीं होता, ऐसे थॉट्स या ऐसे ड्रीम्स बहुत आते हैं जिसकी वजह से नींद डिस्टर्ब बहुत होती है, जिनका मतलब जो कहीं लिंक ही नहीं है, पर मेरे अपनों से रिलेटेड है हमेशा, पर ऐसा कुछ ना हुआ ना होगा। हाँ, ये वही है एक्चुअली। क्या 5 टाइप की ड्रीम्स होते हैं, मैं डेफिनेटली आपके साथ अगली बार शेयर करूंगा। 5 टाइप की ड्रीम्स होते हैं जो हमें आते हैं, और ये शायद एक ड्रीम होता है जो पूरा मिक्स होता है सब चीज का, तो शायद ये उसमें है। बेसिकली वही है, अपने मन के जो डस्टबिन कलेक्ट हो गया, जो इम्प्रेशंस आपने देखा होगा, कई बार हमें बहुत चीजों पे गुस्सा आता है, हम निकालते नहीं है और वो दब जाता है, तो वही सारी चीजें हमारे मन में चलती रहती है, ये वही है। नहीं, आप सोचिए, अभी मेरे को अपने फर्स्ट स्कूल जो मैं कभी गई होंगी 1954 और 55 में, उस स्कूल की बिल्डिंग वो अभी भी है, स्कूल इज देयर, एंड स्कूल एंड टीचर्स और हम बच्चे उसको, मतलब इवन यंगर एज को उसके साथ रिलेट करके, और वो सब चीजें भी बहुत आती हैं। एंड जैसे कि माय हस्बैंड इज नो मोर, तो मैं मैक्सिमम टाइम उनको ही देखती हूँ, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट बैकग्राउंड में, और जो भी कुछ हुआ नहीं है, वो घटना घटी नहीं है, वो ना होगी, पर फिर भी मैं देखती जाती हूँ, कीप ऑन सीइंग। Actually, I think dreams are such a thing which cannot be explained, and इस पे तो पूरी किताबें लिखी गई हैं ममता जी। एंड हमें पता नहीं है कि हमारे अंदर क्या रिप्रेस चीज है जो अंदर घूम रही है हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस में क्या है, कहाँ पे वो सो आपको शायद अपने बचपन की यादें आ रही है, इसीलिए वो स्कूल वहां पे आपको दिख रहे हैं, या कई बार कोई फियर होता है हमारे मन में, तो वो किसी और ही कोई लाइक आपने कहा नॉट रेलेवेंट टू यू, but it is basically bringing your fear out or something like that. So dreams are quite unexplainable as such. I think जो dreams expert होते हैं वही इसको define कर पाते हैं, but subconscious में जो होता रहता है, all that keeps coming back, in our dreams as such. वही सबसे ज़्यादा नींद को disturb करता है। बिल्कुल, but that is exactly what Kapil ji also just said, कि हमारा brain इतना ज़्यादा wired है, इतना ज़्यादा सारा time चलता रहता है, that we also don't realize, and हम उसको रेस्ट देने की बजाय आजकल जो हमारे यहाँ पे टीवीज एंड व्हाट्सएप एंड मोबाइल्स एंड हजारों चीज आ गई हैं, फोन्स, हम किसी से बात कर रहे होते हैं सोने से पहले भी, so all that keeps going on in our mind, and that's what disrupts our sleep, whether it is in the dream form or something else. So I think बहुत सारे टिप्स कपिल जी आपने आज दिए हैं which are really beneficial, and बड़ी छोटी टिप्स हैं जो एक्चुअली जब हम बच्चों को डांट रहे होते तब तो हमें ये सब चीजें याद आ जाती हैं कि लाइट बंद करो, ये करो, बुक्स बंद करो, फोन को साइड पे रखो, लैपटॉप मत चलाओ, बट व्हेन इट कम्स टू अस वी ऑल सीम टू फॉरगेट इट एंड वी से हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दिस इज माय रिलैक्सेशन टाइम, एंड देन वी कीप सिटिंग ऑन आईपैड्स और मोबाइल्स एंड ऑल दैट, या फिर टीवी सच अ थिंग, हम लोग एडिक्टेड हो गए हैं उससे कि घर में टीवी चल रहा हो और हम बेड के सामने बैठे हैं, वहीं पे हम लोग धीरे धीरे
we just doze off, and then the TV keeps running, suddenly we get up and we put it off. So that again, that sound also disrupts, even the flickering in that disturbs us, which we don't realize actually speaking. So all this technology has actually become a bane for our sleep pattern as such. So जो आज इन्होंने टिप्स दिए हैं कि ये सब कुछ टेक्नोलॉजी एक साइड पे रखिए, अपने ब्रेन को रिलैक्स करिए, एंड लाइट वाइट का कितना फर्क पड़ता है. इनफैक्ट आई ऑल्सो रियलाइज दिस कि हम लोग कई बार लाइट ऑन करके ही सो जाते हैं, एंड अब कभी ट्यूबलाइट वाइट होती, कभी येलो होती, कभी कुछ भी होता है, बट एक्चुअली यस, इट इज प्लेइंग ऑन आवर माइंड ऑल्सो, एंड वी डोंट गेट अप वेरी फ्रेश. सो ये बड़े छोटे छोटे टिप्स हैं कपिल जी जो आपने दिए हैं, बट इट्स बीन अ वेरी इंसाइटफुल सेशन एज सच कि अगर हम ये सब कुछ चीजें फॉलो करें, so we will have a better sleep pattern. And Yog Nindra is something which I also have tried many a times in the last year, and in fact abhi bhi jab kara rahe the, I'm quite surprised that everybody woke up, because वो इतनी गहरी नींद में आपको डाल देता है, वो actually speaking आप जब पूरा relax हो जाते हैं, that it's very difficult to come back for that 20-25 minutes while you're absolutely relaxed, and मतलब जब हम शॉर्ट स्लीप्स भी जब हम करते हैं, कभी बीच में हम उठ जाते हैं, अगर हम योग निद्रा करते हैं, सो आई हैव पर्सनली सीन इट दैट इट रियली काम्स डाउन द ब्रेन. मतलब आपको एक्चुअली अपनी नर्व्स फील होंगी कि वो रिलैक्स हो रही है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, एंड उस 25 मिनट में भी अगर आप सो के उठते हैं या आधे घंटे में उठते हैं, जो ये लोग योग निद्रा के बाद जो आधे पौने घंटे की भी स्लीप होती है, पूरी रात की ना भी हो, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप बहुत फ्रेश उठ रहे हैं, which some of you also mentioned right now. So thank you so much for doing that. But only thing is, thankfully my camera was off. Otherwise, I think I would have also just fallen asleep here. So it was that powerful. So should I ask one question? Chaliye, we'll take the last question, then we will close. Hanji. Sorry, I'm taking extra time. I just want to ask you one thing. That is, I have seen many people, those who can narrate a story, ki I have dreamt it yesterday night. But see, we all see. I can't remember even a single thing. But I have seen many people, they make the whole story, they have seen it last night. So why this difference? So what difference is there in their mind, mental state? नहीं, अच्छा है. If you're not able to recollect, that is also good. Absolutely not recollect. Now, what is the difference, the mental state? Yeah, it's just like this only. I mean, just when I was talking about this, so the impressions are not there. If you don't remember that, the mind is clean, the slate of the mind is clean, and that's good. अच्छा है, because even though if the dreams are good or bad, if you still hold on to them, if you still remember, that means the mind is very active at that time also. Good. Acha. I think Kapil ji, next time we'll take a session on dreams with you. That will be best. So with that, thank you so much, Kapil ji, for such a wonderful session that we had with you, and thank you so much. Thank you. I know this is something that it troubles a lot of people, and I hope that everything that Kapil ji has said, even if they are the smallest of the tips, they help you in sleeping better. Because कहते हैं ना, योग से ही तो हम खुद को जानते हैं. नींद हमें अपने आप से जोड़ती है, एंड जब मन शांत हो जाए तो जिंदगी खुद ही हमारी चमक उठती है. एंड somebody's mic is open, they'll have to close it, please. Thank you. So नींद हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है. पूरी हमारा शरीर, उस पर अगर हमें ठीक से नींद ना मिले तो कितनी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं. So आज जितने भी हमें कपिल जी ने टिप्स दिए हैं, I hope it helps us to sleep better, and in the bargain have a more peaceful life and less of stress. So I hope all of us are going to try that. So with that, thank you so much once again, Kapil ji, for this wonderful session. Thank you, everybody. So now
Thank you so much, everyone. And now we will meet you tomorrow at 8 o'clock sharp for a physiotherapy session.